Hey guys, good evening. So in this workshop, I'm going to be talking about Titan Company. So this is the first company that I've taken in the whole jewelry space. I'm going to be taking around 5 to 6 companies in the entire space, and of course, I'm going to be doing one workshop, one individual workshop for every company, so that you understand ki, like what all the companies are doing at an individual level, and then of course you can connect the dots and you can see where the sector is headed. So with Titan Company, again, like just like always, I'll talk about the business model. I'll talk about ki, like all the segments of the business, right? And then I'll talk about the new segments that the company is trying to get into. I'll talk about the Q1 results, uske baad, and then the management con call. And of course, management con call may I'll also talk about more on say all the insights that the management of Titan Company gave on all its segments and the business outlook. So अगर हम Titan Company के बारे में बात करें, so Titan Company is mostly a jewelry company. Got it? Because I'll tell you this, like around 87 to 89% of their total top line or sales come from the jewelry division. So Titan is basically a jewelry company. And what are the brands that they have today? They have this main jewelry or the wedding jewelry brand, which is called Tanishq, which is very famous, right? Tanishq basically अगर आप देखोगे 1996 से हमारे country में है, right? And it is probably one of the biggest pan India brands in this country. और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे और टाइटन के पास ज्वेलरी का और तीन सब मतलब और तीन ब्रांड्स है. एक है मिया, फिर दूसरा है कैरेट लेन एंड तीसरा है जोया, right? Zoya is basically into luxury jewelry. But then having said that, Zoya का 3 4 5 स्टोर्स ही है. तो मेन उनका जो मेन, क्योंकि देखिए अगर इंडिया में अगर आप देखोगे ज्वेलरी का मतलब ही है जनरली मेजोरिटीली आपका वेडिंग ज्वेलरी, राइट? क्योंकि इफ यू लुक एट द इंडियन ज्वेलरी मार्केट, अराउंड 60% ऑफ ज्वेलरी लोग शादी के टाइम खरीदते हैं. सो इट्स वेडिंग ज्वेलरी. 30 to 40% आता है लाइक ज्वेलरी दैट यू वेयर ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड अदर ओकेशंस. ओके, सो अगर हम जैसे बात किए कि लाइक अगर आपको टाइटन कंपनी के बारे में जानना है तो आप उनके ज्वेलरी सेगमेंट को देखिए, बिकॉज दैट इज अराउंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टोटल सेल्स. सो अगर मैं टोटल बात करूं, सो टाइटन कंपनी के पास टोटल 2700 स्टोर्स है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल सेगमेंटेशन, राइट? तो जैसे मैंने बोला 90% ऑफ द सेल्स ऑलमोस्ट आता है ज्वेलरी सेगमेंट में. नाउ हाउ मेनी स्टोर्स डू दे हैव इन द ज्वेलरी स्पेस? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 800 के आसपास, राइट? अक्रॉस तनिष्क, मिया, कैरेट लेन एंड जोया. गॉट इट? अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो रिमेनिंग 10-12% ऑफ रेवेन्यूज है ऑफ टाइटन का, वो आते हैं दो मेजर और सेगमेंट के. एक हो गया वॉचेस एंड दूसरा हो गया आईवेयर. लेकिन नाउ थिंक अबाउट दिस, राइट? इतने सालों के बाद भी बिजनेस करने के बाद, इफ वॉचेस एंड आईवेयर आर ओनली कंबाइंड 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज, दैट मींस ये कुछ खास सेगमेंट नहीं है. इट्स नॉट अ सेगमेंट दैट वी कैन टेक वेरी सीरियसली एज एन इन्वेस्टर. सो दैट्स व्हाट आई सेड कि लाइक अगर आप टाइटन के बिजनेस का हिस्ट्री देखोगे, दे वर अ वॉच कंपनी फर्स्ट, जो बाद में ज्वेलरी में आया था. Got it? I think they went into the watch business in the 80s, and then उसके बाद they came into the jewelry business in the towards the mid 90s, right? लेकिन आज अगर आप सोचो कि 80s से लेके आज तक, if the watch business contributes to 7 to 8% of the top line, that means you clearly understand, right? कि like watches business का कुछ खास नहीं है. और अगर मैं eyewear का बात करूं, I believe that eyewear business is in a hyper competitive market, because अब देखोगे eyewear का businesses हर locality में competition है. तो आईवेयर बिजनेस कभी उनका ढंग से चला ही नहीं. तो अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको डेटा पॉइंट्स बोलूं, नंबर ऑफ स्टोर्स अगर आप देखोगे, तो वॉचेस में दे हैव अप्रोक्सीमेटली 1000 स्टोर्स के आसपास है, राइट? और दूसरे साइड अगर आप देखोगे आईवेयर में दे हैव अराउंड 900 स्टोर्स. तो टोटल टाइटन कंपनी में 2700 स्टोर्स है, 2700 स्टोर्स, जहां पे जो 800 स्टोर्स है ज्वेलरी का, वही स्टोर्स कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 85 to 90% ऑफ द रेवेन्यूज. रिमेनिंग जो स्टोर्स है, जैसे जो 1000 स्टोर्स ऑफ द इन द वॉच सेगमेंट एंड 900 स्टोर्स इन द आईवेयर सेगमेंट, दे कंट्रीब्यूट अराउंड 10-12%. इसके साथ साथ टाइटन रिसेंटली हैव एंटर्ड इनटू अ लॉट ऑफ अदर सेगमेंट्स एज वेल. जैसे आप देखोगे कि लाइक दे एंटर्ड इनटू दिस होल साड़ी का सेगमेंट, राइट? एंड उन्होंने ब्रांड किया तनेरा, राइट? फिर उसके बाद आप देखोगे दे इंट्रोड्यूस दिस परफ्यूम व्हिच इज कॉल्ड स्किन, राइट? तो वो हो गया एक और ब्रांड. And recently, I think it's probably like around 5 to 6 months old, but they have also introduced a handbag category जिसका नाम है IRTH, right? But then having said that, these are at a very nascent stage and they hardly contribute to the top line. So जैसे as I said कि like Titan is majority a jewelry business.
तो थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं टाइटन का. सो द टॉप लाइन ग्रू 21% ऑन अ वाई बेसिस. और अगर आप देखोगे कि लाइक ये जो टॉप लाइन है तो 21%, एंड अगेन लाइक अगर टॉप लाइन 21% से ग्रो करता है एंड ज्वेलरी स्पेस इज 90% of the total sales, then of course jewelry का segment will also have grown in that same space. So the jewelry segment of Titan grew 22% on YOY basis. और दूसरे एंगल से अगर आप देखोगे the growth rate of watches and the eyewear division have fallen. तो अगर मैं watches division का बात करूं, they grew 16% on YOY basis. और अगर मैं eyewear का बात करूं, वो सबसे बुरा, and that division only grew 11% on a YOY basis. So इसका क्या मतलब है that the jewelry division is entirely pulling the business of Titan company. और उसमें आपका ये watches division और eyewear का division is pretty mediocre, to say the least. तो अभी हम थोड़ा जान लेते हैं कि लाइक मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या क्या चीजें बताया. सो as usual the management said कि like the entire top line growth is driven by the jewelry business. और watches में भी अगर आप देखोगे उनका स्मार्ट वॉचेस का सेगमेंट has done very well, right? But apart from the smart watch segment, the other watch का सेगमेंट, because Titan अपना खुद के ब्रांड का भी वॉचेस बनाते हैं और थर्ड पार्टी ब्रांड्स लाइक फॉर एग्जांपल टॉमी हिलफिगर वॉचेस, पुलिस के वॉचेस का भी यहाँ पे उनका 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 सेल करते हैं. लेकिन वहां से उनको कुछ खास हो नहीं रहा है ग्रोथ. सो अगर आप देखोगे, एंड ऑफ कोर्स द मैनेजमेंट टॉक्ड अबाउट मैनेजमेंट टॉकिंग अबाउट के लाइक अ बिट ऑफ हेडविंड in the space of Tanera and in the space of skin, which is the perfume. So what is the management of Titan saying ke like for the now this is a very critical aspect here. Now Titan ka management said that going forward they will be trying to increase the pace of store expansion, right? Now when a company wants to increase the pace of store expansion, is the management clearly says कि अभी इंडिया में जो सिचुएशन है कि ऑर्गेनाइज ज्वेलरी का जो स्पेस है, राइट, दे आर टेकिंग मोर एंड मोर मार्केट शेयर राइट फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज स्पेसेस. नाउ देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर इट. एक रीजन तो है कि लाइक बिकॉज ऑफ जीएसटी सबको टैक्स कंप्लायंट होना पड़ रहा है. दूसरा जो है वो है कि गोल्ड का जो हॉलमार्किंग है वो मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने. इसका मतलब है अगर आपका क्योंकि देखिए अगर आपका गोल्ड हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं है तो क्या होता है ना, लोग यहाँ पे सोचते हैं कि वो 22 कैरेट का गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन लेट्स से उनको मिला 19 कैरेट का गोल्ड. मतलब वो प्योर गोल्ड नहीं होता है, वो इम्प्योर गोल्ड होता है. नाउ थिंक अबाउट दिस, राइट? आज इंडिया में कितने भी आज लोकल प्लेयर्स है जो लेट्स से प्योर गोल्ड का बिजनेस, मतलब इम्प्योर गोल्ड का बिजनेस कर रहे हैं, राइट? सो जब ये मैंडेटरी हॉलमार्किंग कर दिया तो उनका तो बिजनेस ठप हो गया. दूसरा रीजन ये है कि अगर आप देखोगे कोविड के बाद ये सारे लोकलाइज प्लेयर्स का वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम आ गया. और ये सब जो पैन इंडिया ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है लाइक टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, सेंको गोल्ड हो गया, तो ये सारे बिजनेसेस पे कस्टमर्स और आने लग गए. वन अदर पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज लाइक ब्रांड इज आल्सो प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल. बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ टाइटन कंपनी, यू वुड सी लाइक बैक इन 1996 1998 ये बिजनेस चला कैसे. when Titan introduced this caratometer was an instrument जो लाके टाइटन कंपनी ने ये बोला सबको कि यू ब्रिंग इन योर गोल्ड और देखिए कि वो गोल्ड कितना परसेंटेज प्योर गोल्ड है. और वहां पे क्या हुआ, बहुत कस्टमर्स को फिर ये समझ में आया कि हम जो इतने बरसों से जो गोल्ड रखे थे वो गोल्ड प्योर है ही नहीं. और इंडिया में तो गोल्ड इज नॉट ओनली मतलब थॉट ऑफ एज एन ऑर्नामेंट, इट इज ऑल्सो थॉट ऑफ एज एन इन्वेस्टमेंट. तो जब आप देखोगे जैसे ये कैरेटोमीटर लाने के बाद से आप देखोगे धीरे धीरे करके, बिकॉज तनिष्क बिकेम अ बिग ब्रांड उसके बाद से आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेटोमीटर. दूसरा चीज ये है कि अगर आप देखोगे टाइटन का एक और बड़ा आइडिया था जो बहुत अच्छे से चल गया, वो है कि गोल्डन हार्वेस्ट. मतलब सोचो फॉर एग्जांपल अगर आपकी बेटी की शादी है 1 साल बाद, तो अभी आप क्या करोगे, टाइटन में जाके आप हर महीने कुछ कुछ करके पैसे डालोगे, राइट? और वो क्या करेंगे, ये पैसे को इकट्ठा करेंगे और उस टाइम पे जब आपकी बेटी की शादी होगा, राइट, तो उस टाइम पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा. सोचो से फॉर एग्जांपल अगर आप 5,000 रुपए करके हर महीने डालते हो, सो एट द एंड ऑफ द 10th मंथ से तो आपने 50,000 रुपए डाला हो, राइट? सो देन उसके बाद 1-2 महीने के बाद यू कैन लेट्स से फॉर एग्जांपल बाय ज्वेलरी वर्थ ऑफ 55,000-60,000 रुपीज, राइट? तो वहां पे 5-10 हजार का आपको वो मुनाफा मिलता है एंड उससे आप क्या कर सकते हो, आपका मेकिंग चार्जेस वहां पे लेट्स से कवर हो जाता है. सो एनीविच वे, अब थोड़ा मेकिंग चार्जेस की बात करते हैं. मेकिंग चार्जेस का क्या मतलब है, बिकॉज अगर आप देखोगे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का अच्छा डिजाइन टीम होते हैं, इनका जो कारीगर्स होते हैं ना, जो ज्वेलरी को मोल्ड करते हैं, तोड़ते हैं, फिर डिजाइन करते हैं, राइट?
और ये लोग क्या करते हैं, जितना एक, क्योंकि देखिए अगर आप ज्वेलरी को ऐसे ही बेच रहे हो, राइट, मतलब से फॉर एग्जांपल अगर आप एक गोल्ड बिस्किट बेच रहे हो तो उसमें आपको ज्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन अगर आप डिजाइनर ज्वेलरी बेच सकते हो तो आपको एक मेकिंग चार्जेस मिलता है, राइट। और ये मेकिंग चार्जेस से भी ये ऐसे 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 प्लेयर्स लाइक तनिष्क हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गए, इनको बहुत मुनाफा होते हैं। तो ये तो चलो थोड़ा बहुत बिजनेस मॉडल का हमने बात कर लिया। तो अगर आप बोलोगे मेकिंग चार्जेस किस रेट में जाता है, मेकिंग चार्जेस कैन गो अप टू इवन 25-30%। ठीक है, मतलब सोचो अगर आपने 10,000 रुपए का ज्वेलरी खरीदा, डिजाइनर ज्वेलरी, उसमें से 2500 रुपए का मेकिंग चार्जेस भी हो सकता है, 2500 रुपीज। सो तो टाइटन का मैनेजमेंट अभी क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ जीएसटी, बिकॉज ऑफ द मैंडेटरी हॉलमार्किंग, ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे डीमोनेटाइजेशन, एंड फिर कोविड के बाद जैसे मैंने वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम्स बोला, एंड ऑफ कोर्स ये जो ट्रस्ट ट्रस्ट के वजह से, क्योंकि ब्रांडेड ज्वेलरी पे आज लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, राइट। सो अगर ये सब चीजों को हम मिलाए तो आज अगर आप देखोगे ना, ये जो ज्वेलरी का जो पूरा सेगमेंट है, ठीक है, उसमें से ऑर्गेनाइज ज्वेलरी प्लेयर्स आर कैप्चरिंग मार्केट शेयर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स एट अ रैपिड पेस। तो इसीलिए टाइटन को ये समझ में आ गया कि लाइक नो, नाउ वी हैव टू इंक्रीज द पेस ऑफ आवर स्टोर एक्सपेंशन टू कैप्चर दिस मार्केट ना। बिकॉज अगर टाइटन अपने पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ स्टोर एक्सपेंशन को मतलब नहीं बढ़ाया तो कल्याण आएगा, सेनको आएगा, और भी लोकल प्लेयर्स आएंगे और शायद उनका मार्केट शेयर ले लेगा, राइट। सो टाइटन का अगर आप देखोगे ऑनलाइन ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट का 7% है टाइटन का मार्केट शेयर, and in the next 3 to 4 years they want to increase the market share to 13 to 14%. So Titan is trying to double its market share in the next 3 to 4 to 5 years. तो आप इस तरीके से देखो, ये मैनेजमेंट ने बताया। दूसरा जो चीज है उसने उन्होंने ये भी बताया कि सिंस वी आर इंक्रीजिंग द पेस ऑफ स्टोर एक्सपेंशन गोइंग फॉरवर्ड, राइट, नाउ व्हेन यू इंक्रीज द पेस ऑफ स्टोर एक्सपेंशन, आपका तो खर्चा अपफ्रंट होता है ना, मतलब आपका लेट से रेंटल एग्रीमेंट बोलो, लीज एग्रीमेंट बोलो, लोगों को हायर करना पड़ेगा, इन्वेंटरी में खर्चा है, राइट, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी आपको लेना पड़ेगा, राइट। सो इन्वेंटरी का खर्चा इज अ बिग बिग पार्ट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि अगर आप लेट से किसी को ज्वेलरी बेच रहे हो तो गोल्ड आपको लेना पड़ेगा। गॉट इट। सो इसीलिए टाइटन क्या बोल रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड, आई मीन फॉर द रेस्ट ऑफ FY24 एंड इन FY25, टाइटन कंपनी माइट नॉट गेट ऑपरेटिंग लेवरेज। मतलब क्या, मतलब इनका टॉप लाइन का ग्रोथ विल बी एट अ फास्टर पेस देन द बॉटम लाइन का ग्रोथ, बिकॉज कंपनी ये बता रहे कि हमारे यहाँ पे हमारे फिक्स कॉस्ट बढ़ने वाला है, राइट। तो why? Because they want to capture more of market share. So basically right now they are focusing more on capturing market share than on increasing margin. तो ये क्या बोल रहे हैं, तो basically what I try to tell you is this, कि like हमें ग्रोथ पे फोकस करना है rather than margins पे। तो यहाँ पे अगर टाइटन कंपनी को अगर मार्केट शेयर गेन करना है, दे आर एब्सोल्युटली ओके टू गेन मार्केट शेयर एट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन। तो यहाँ पे अगर उनका ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब ईबिट मार्जिन थोड़ा घट भी जाए, पैट मार्जिन थोड़ा घट भी जाए, एज लॉन्ग एज दे आर कैप्चरिंग मार्केट शेयर, दे विल बी ओके। तो इसके साथ साथ अगर आप देखोगे टाइटन का जो जो एक और कंपनी है जो टाइटन ने ले लिया रिसेंटली, कैरेटलेन। सो द कंसर्न इसके लिए कैरेटलेन का पेस ऑफ ग्रोथ हैज कम डाउन फ्रॉम 50% पहले, मतलब 50% से पहले वो ग्रो करता था, अभी वो सिर्फ 30% से ग्रो कर रहा है। सो गोइंग फॉरवर्ड द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स द ग्रोथ रेट टू गो बैक अप टू 50% बिकॉज टाइटन कंपनी इज वेरी वेरी बुलिश इन द होल स्पेस ऑफ कैरेटलेन। ओके, सो ये हो गया बात। और ऑफ कोर्स आज आप देखोगे टाइटन के इंडिया में जैसे मैंने बताया, राइट, के लाइक दे हैव अराउंड 700 600 700 800 के आसपास का स्टोर्स है, राइट। सो दैट इज व्हाई द कंपनी इज नाउ फोकसिंग मोर ऑन द इंडियन डायस्पोरा इन द मिडिल ईस्ट एंड द यूएस मार्केट। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कंपनी ने कुछ अराउंड 24 स्टोर्स के आसपास ऐड भी किया है, राइट, इन द इंटरनेशनल मार्केट। एंड ऑफ कोर्स वहां पे अगर आप ज्वेलरी बेचोगे तो वहां पे आपको मार्जिन थोड़ा ज्यादा मिलता है देन व्हाट यू गेट इन इंडिया। ओके, सो ये बन जाता है बात यार। और मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि लाइक रिसेंटली इन द, आई मीन इफ यू लुक एट द लेटेस्ट ट्रेंड हियर, रिपीट बायर्स आर मोर देन न्यू बायर्स फॉर दिस कंपनी। ठीक है, तो ये हो गया बात। और तो कुछ है नहीं, बिकॉज टाइटन का मैनेजमेंट दे डोंट गिव आउट एनी गाइडेंस। ओके, सो जो भी मैंने आपको बोला ये सब चीजें बोला कि लाइक मतलब दिस इज मोर इन लाइन विद व्हाट द मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द एनालिस्ट कॉन कॉल। द मेन थिंग दैट वी नीड टू केटर इज के दिस, अगर मैं आपको एक चीज मतलब बिफोर आई एंड दिस वीडियो ऑन टाइटन कंपनी, लेट मी टेल यू दिस के लाइक
टाइटन कंपनी एक ऐसा निफ्टी स्टॉक है जो अभी भी 20% से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखोगे निफ्टी में, राइट, टाइटन और बजाज फाइनेंस आर दी ओनली टू कंपनी जो लेट्स से 20, 25, 30% से ग्रो कर रहा है और आगे जाके इस रेट को मेंटेन कर सकता है। जैसे टाइटन टॉप, क्योंकि देखिए टाइटन ग्रू एट कितना, टाइटन ग्रू एट 21, 22% टॉप लाइन, वाई ओ वाई की बात कर रहा हूँ इन Q1 FY24, एंड वो ये बोल रहे हैं कि वो अपना स्टोर एक्सपेंशन का पेस को बढ़ाएगा। सो इनडायरेक्टली मैंने, अब देखिए अब कितना स्टोर एग्जैक्टली खोलेगा वो नहीं बोलते, दे डोंट गिव आउट गाइडेंस, दे डोंट गिव आउट गाइडेंस फॉर टॉप लाइन, दे डोंट गिव आउट गाइडेंस कि वो कितना स्टोर खोलने वाले हैं। दैट हैज नेवर बीन अ पार्ट ऑफ द डीएनए ऑफ द बिजनेस, ठीक है, वो कभी कभी कोई गाइडेंस देता नहीं है। बट व्हेन अ बिजनेस टॉक्स अबाउट इंक्रीजिंग द पेस ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ स्टोर एक्सपेंशन, मतलब आगे जाके आई कैन से कि जो टॉप लाइन का जो ग्रोथ है वो 20-25% के आसपास रह जाएगा। गॉट इट? बट हैविंग सेड दैट द बॉटम लाइन का ग्रोथ माइट बी लेस देन दैट। Why? Because the management clearly says, right, कि now they are focusing more on market share gain over maintaining margins. तो ये बन जाता है टाइटन कंपनी का एनालिसिस, राइट। टाइटन कंपनी के बारे में और तो कुछ बोलना नहीं है, मतलब इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी एंड इट्स अ वेरी रिनाउंड कंपनी। फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टिल द टाइम, गुड बाय।